So we are having 4 modules in Commerce 4. That is, module number 1 is production and inventory management, module number 2 quality management, module number 3 Indian financial system, and module number 4 recent trend in finance. Okay, these are your 4 modules. All these are practically based on your company, your business, your management system. So whatever you will be learning over here, that is completely and practically used in your management process, in your organization process, okay, in your manufacturing process. मतलब ये जो आप पढ़ोगे ये आप एक्चुअल में काम करोगे जाकर. अब तक जो पढ़ रहे थे वो क्या था? That was the theory. This is also theory, but these things you will be practically doing in future. So first is production and inventory management. As we know, company deals with production. पहले हम लोग क्या करते हैं? We produce the goods, we manufacture the goods, then only we will sell the goods. Correct है? सेल करने के लिए क्या चाहिए? Either you want some product or you want some service. दो ही चीजें चाहिए मार्केट में, either a product or service. So first we will produce or first we will manufacture the production, and then your inventory management. Now the another most important part for the business perspective is inventory management. What do you mean by inventory? Inventory means stock. Stocking सुना है आपने? Okay. Stocking means to manage the inventory or to manage the stock. Okay. So nowadays it is again the important need of the market, stocking or inventory management. उसका एक particular अलग से course है inventory management का. Okay. Because there should not be a gap, much gap between the manufacturing process and selling process, because these manufacturing and selling, they parallelly goes by demand. Correct? That will go by demand. जितना मार्केट में डिमांड है उतना कुछ आपको क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You will have to keep a track on your sales. कितना आपका प्रोडक्ट सेल्स हो रहा है. अगर आपने कम स्टॉक मैनेज किया है, that means your inventories are less than the demand. तो क्या होगा? If your inventory is less than the demand, there will be a shortage of goods. Ultimately, what will happen? The customers will switch to the competitor's product. Loss है आपके लिए. Customers will, for example, you, अगर आप कोई पर्टिकुलर शॉप में कोई गुड्स परचेज करने जाते हो, फॉर एग्जांपल ये बुक और पेन, अगर आपको पर्टिकुलर शॉप में बुक नहीं मिले तो क्या करते हो? आप घर जाते हो, we immediately go to the another shop, है ना? उसके पास नहीं मिलेगा तो थर्ड शॉप. That means the customers will immediately switch to the competitor product, and that will be a loss for the organization. अगर इन्वेंट्री ज्यादा हो गया, इन्वेंट्री इज मोर देन दी डिमांड, फिर क्या होगा? लेस है तो प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है? If inventory is more than the demand, then what is the issue? ज्यादा होना चाहिए ना. डिमांड से हमेशा क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए इन्वेंट्री की. नो. If inventory is more than the demand, then again it will be a loss. Now why it will be a loss? If the taste and preference of the customer changes, if the fashion changes, क्या होगा? Ultimately the stock will be lying like that, and again it will be a loss. So inventory should neither be too high, neither be too low.
इन्वेंट्री शुड नॉट बी टू हाई नॉर टू लो। ना तो ज्यादा स्टॉकिंग करना है हमें, ना ही हमें कम स्टॉकिंग करना है। हमें क्या करना है, वी शुड बी पैरेलल विथ अवर डिमांड। कितना सेल्स हो रहा है, कितना मार्केट में डिमांड है, और उसके साथ ही हम लोग चलेंगे। ओके, सो दैट वी विल बी लर्निंग इन दिस मॉड्यूल नंबर 1. What is your production management? How are you going to produce? What is productivity? And how are you going to manage your inventory? Okay, this is some inventory management system. Inventory, channel of distribution, your warehousing. The main role is played by your warehousing, because there is a gap from manufacturer to selling point and for consumption. So the main role will be played by the warehousing. क्योंकि immediately goods produce होते सेल होता है नहीं होता है ना, कंज्यूमर तक जाने तक एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस कंप्लीट कौन करेगा? दैट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय योर warehousing. नेक्स्ट, मॉड्यूल नंबर 2, क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट मॉड्यूल क्या था? प्रोडक्शन. सेकंड मॉड्यूल इज योर क्वालिटी मैनेजमेंट. दैट मींस व्हाटएवर गुड्स वी आर प्रोड्यूसिंग, आर वी एबल टू complete with our quality? Are we able to fulfill the customers with the quality product? So how are we going to manage our quality, and what are the norms to check the quality? जब आप कल गुड्स प्रोड्यूस करोगे, if you are going to start up your business, then what are the processes through which you will have to go through? ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे या कोई भी सर्विस बनाओगे, तो what are the government norms to check the quality? क्वालिटी मीन्स हम लोग नॉर्मल जैसा हम लोग चेक करते हैं वैसे चेकिंग नहीं होता है. क्वालिटी एश्योरेंस आर डिफरेंट. What we will be doing, we will be just physically examining. One of it is ISO 9000 किया था ना हमने, ISO certification that gives the proof, that gives the evidence that a particular product is of good quality. Apart from that, internal quality assurance अलग है, external quality assurance अलग है. ISO is an external assurance. उसके अलावा हम क्या करेंगे? First we will check internally. For example, your results are external assurance because वो external exam है, और जो हम लोग क्लास टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो क्या है? इंटरनल एश्योरेंस है. तो पहले हम क्लास टेस्ट रखते हैं, isn't it? To assure that okay, अब आप लोग एग्जाम लिख सकते हो, and then you write the exam. So your mark sheet is your output. प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक, कंजम्पशन से क्वालिटी तक, और क्वालिटी से उसके बाद में योर आउटपुट. What actually you understood and what actually you have gained. That is what is your quality management. ठीक है? So in this module you will be learning cost of quality, quality circle, ISO 9000 you have completed. We will just quickly go through, and service quality management. Another a very good and important topic for you. If you are here by perspective of a job or a business, अगर उस perspective से आप यहाँ बैठे हो तो क्या है आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है. मॉड्यूल नंबर 2, how to maintain the quality. Because as I said you, people don't want qualification. What people want? They want qualified people. डिग्री कोई भी ले सकता है, बहुत इजी है अभी आज के टाइम पे डिग्री लेना. बट व्हाट पीपल वांट, दे वांट क्वालिफाइड पीपल, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू इंप्रूव योर क्वालिटी. ओके, this is what is your quality management system. First of all, keeping in mind it is a continuous process. Quality कभी भी 1 day 2 day 1 year 2 year 3 years का नहीं होता. It is a continuous process. You have started your learning from your junior KG. You have improved your quality in primary level, again secondary, then your junior college. उसके बाद आपका भी now you are in your degree. फिर आपको लग रहा है ग्रेजुएशन के बाद क्वालिटी खत्म होगी? नो, ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअल आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा. सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस.
जहां आपने कंटिन्यूटी छोड़ दी वहां पर आपकी क्वालिटी स्टॉप हो जाएगी, and then you will be a very big failure. So for quality management system, we will have to define our business process, then your management responsibility, customer focus. Why? Because we are not in a traditional business. We are not in traditional services. What we are in modern age. And your customer satisfaction is more important than your profit. कभी कभी हमें लॉस में भी काम करना पड़ेगा. Why? Because we need customer satisfaction. Because for whom we are producing the goods, we are producing the goods for the customers. Who is going to purchase your goods? Customers. So ultimately we should be customer oriented. इसको अपने दिमाग में फिट कर लो. What it is? It is a customer oriented program. Or whatever business you are doing, it should be customer oriented. सेल्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, मार्केट में सरवाइव नहीं करोगे. आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करोगे. Because I have said you so many times, again I will repeat, for one particular brand we have hundreds of competitors or thousands of competitors. Monopoly market nahi hai. We are purely in a competitive market. If you are unable to fulfill the customer, if you are unable to fulfill your quality, then you are out of the market. And once you are out, means out. Because again you will have to start with the establishment process. Again you will have to start with introduction process. So अगर maturity पे आके अगर आप decline होते हो, that means you are gone. Okay, so it should be a customer oriented process and it should be a continuous process. बीच में आप कहीं पे भी stop नहीं कर सकते, सोच के भी नहीं कर सकते. If you are thinking that okay you will be taking the break, break means break. Next, Indian financial system. Another important and good topic for you to learn, especially for investments. If you are planning for investment, investment कहाँ कर सकते हैं हम लोग? Where we can do the investment? आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो? Where do you invest? Nowhere. Investment करते हो आप? That question is that where do you invest now? आप अभी कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो? कहीं भी नहीं. Why are you not investing? Why are you not investing? Because you are not having the income. You are not having the savings. इन्वेस्टमेंट हम मैंने कितने बार बोला है, लास्ट टाइम बोल रही हूँ, डू नॉट मरमर इन बिटवीन. यू आर नॉट रैट्स, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, वो कौन करता है? रैट. रैट को देखा है? रैट का फीचर, घर में वो कहीं से छू 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 आवाज करते रहेंगे ना. सो यू आर नॉट रैट्स, यू आर ह्यूमन बीइंग, सो बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग. और अगर कुछ बोलना है से मैम आप बंद करो, बहुत बोल दिया है आपने, अभी हम बोलेंगे. तो सच टाइप ऑफ कमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड. इंस्टेंट बिहेविंग लाइक अ रैट. ठीक है. सो माय क्वेश्चन वाज दैट कि व्हाई आर यू नॉट इन्वेस्टिंग? एंड व्हेन वी इन्वेस्ट, कब इन्वेस्ट करते हैं? व्हेन वी आर हैविंग द सेविंग्स. इनकम पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये हमेशा याद रखना कि अगर मैं कमा लूंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, या मैं कमा लूंगी तो इन्वेस्टमेंट करूंगी. नहीं, इन्वेस्टमेंट कब होता है? सेविंग्स पे. बिकॉज जब आप कमाओगे, दैट मीन्स व्हेन देयर इज इनकम देयर इज एक्सपेंसेस. खर्चा भी है. इनकम है तो खर्चा भी है. तो हम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? व्हेन वी हैव सेविंग्स. ठीक है. अब आपके पास सेविंग्स है? नहीं है हमारे पास सेविंग्स. करेक्ट है? क्यों?
Again the answer is same, because you are not having the sufficient income. ठीक है. So Indian financial system, we were knowing that okay, investment मतलब हम लोग कहाँ investment कर सकते हैं? Only to the stock exchange, stock market. ठीक है. But we don't know the complete features of stock market. पता है? नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर जाकर हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर देम? What all are other financial institution where you can invest apart from stock exchange? कौन कौन से एरियाज है जहां पर आप लोग क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. In this module, we will be saying what are the guidelines for your stock exchange. ठीक है. To protect the customers, to protect the investors, some guidelines are being framed by the SEBI, because they do not follow stock exchange, do not follow the guidelines of government. उनके लिए अलग लॉ है. Securities Exchange Board of India, जैसे हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए देखा था AAAI है, तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के लिए क्या है? स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. They will frame the guidelines for each and every stock exchange, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, बीएससी, एनएससी, कुछ भी हो, उनका गाइडलाइंस कौन फ्रेम करेगा? सेबी. इंडियन कंपनी एक्ट नहीं, पार्टनरशिप एक्ट नहीं, गवर्नमेंट लॉ नहीं, कुछ भी नहीं. कौन फॉलो करेगा? कौन बनाएगा? कौन फ्रेम करेगा? ओनली एंड ओनली सेबी हैज द राइट. नाउ हियर अगेन देयर आर टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो इंडिया भी फॉलो करती है, क्रिसिल एंड कैर. ये दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. नाउ व्हाट इज दे विल बी गिविंग द क्रेडिट टू द कंपनीज. जब हम लोग स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तो वहां पर हमें क्रेडिट मिलता है. क्रेडिट, इससे क्या बेनिफिट है? इससे हमें बैंक ज्यादातर लोन देगा. जैसे अभी टर्म आपने सुना होगा, सिबिल. लोन लेने के पहले सिबिल चेक करते हैं. टर्म सुना होगा, मुझे पता है आपको नहीं पता इन डेप्थ क्या होता है. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. तो सिबिल क्या है? सिबिल इज योर क्रेडिट रेटिंग. अब ये क्रेडिट रेटिंग कैसे पता चलता है? आप लोगों का सिबिल अगर सबका चेक करेंगे तो सिबिल क्या आएगा? 0. आप सबका सिबिल क्या है? 0. नवाई 0, क्योंकि आपने अभी तक लोन नहीं लिया. अब आप बोलोगे मैम लोन की क्या जरूरत है? अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत है. सिबिल कब बढ़ता है? व्हेन यू विल बी टेकिंग अ लोन. विच टाइप ऑफ लोन? वेदर इट कैन बी अ कंज्यूमर लोन, वेदर इट कैन बी अ पर्सनल लोन, क्योंकि दो ही लोन है आपके लिए. कंज्यूमर लोन ले सकते हो, या कोई प्रोडक्ट लोन ले सकते हो, या पर्सनल लोन ले सकते हो. ठीक है. या फिर होम लोन. ज्यादातर यही 3 लोन मैक्सिमम लोग लेते हैं. तो जब आप लोन लोगे, ईएमआई पे करोगे ऑन टाइम विदाउट बाउंसिंग, तब जाकर आपका क्या होगा? सिबिल रेटिंग बढ़ेगा, यानी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, आपका किराना दुकान, आप रेगुलरली उस पर्टिकुलर किराना दुकान से जाके सामान खरीदते हो. एक पर्टिकुलर शॉप फिक्स होता है ना हमारा. छोटे छोटे शॉप के लिए आप बार बार बिग बाजार तो नहीं जा सकते, बार बार डीमार्ट या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर जाओगे. 1 kg शुगर के लिए अगर आपको बिग बाजार जाना है तो यहाँ पर बिग बाजार सबको पता है चेंबूर ईस्ट में, तो उसका डबल कॉस्ट हो जाएगा आपका. अल्टीमेटली हम कहाँ जाते हैं? नॉर्मल किराना स्टोर पे. तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पैसे का शॉर्टेज हो जाता है, होता है ना, वंस इन अ वाइल. ऐसे नहीं डेली, बट वंस इन अ वाइल होता है. तो हम क्या बोलते हैं? अंकल बाद में ले लेना. शॉपकीपर भी हमें बोल देता है आप बाद में दे देना. क्यों? बिकॉज हम उसके रेगुलर कस्टमर्स है और उतना हमने क्रेडिट गेन किया हुआ है. मतलब उसको पता है कि हम लोग कभी भी क्रेडिट पे नहीं लेते हैं, पेमेंट करके ही लेते. तो वंस इन अ वाइल होता है तो वो क्या करता है? हमें एक्सक्यूज दे देता है ना, कि आप बाद में दे देना, या हम बोलते हैं आप बाद में ले लेना. दैट इज व्हाट इज योर क्रेडिट रेटिंग. तो जब हम सिविल स्कोरिंग के लिए जाते हैं तो सिविल स्कोरिंग क्या है कि वो चेक करेंगे आपने पहले कितना लोन लिया था और उसका पेमेंट कैसे किया. अगर आपका एक भी पेमेंट बाउंस हो गया तो सिविल रेटिंग क्या होगा? आपका डाउन हो जाएगा. ठीक है. Same as like every organization will have to get the rating, CIBIL and CRISIL or CARE. और कैर से इससे क्या होगा? बैंक will give them the loans,
ठीक है, जो लोन फिक्स अमाउंट रहता है वो फिक्स किससे होगा? सिविल रेटिंग से, क्रिसिल रेटिंग से, कैर रेटिंग से। ये रेटिंग्स है। ओके, ये हम जब इन डेप्थ मॉड्यूल में जाएंगे तब स्लोली स्लोली देखेंगे कि इन डेप्थ क्या होता है। So this is what is your financial system. Financial institution अलग है, financial market अलग है, financial instrument अलग है और financial services अलग है। इस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमें लगता है सारी एक ही चीज है, एक नहीं है। आप में से अगर कोई सोच रहा है फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में जाना है, बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, सो आपको ये जो चार्ट है इसको ठीक से समझना पड़ेगा। वो कौन सी मूवी आई थी, स्कैम आया था ना अभिषेक बच्चन का, कौन सी मूवी थी वो? पता ही नहीं। अभिषेक बच्चन ही था ना उसमें। स्टॉक मार्केट का स्कैम था वो, एक रियल स्टोरी है। वो सब कौन देखता है मैम, हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अभी धूम 5 आ जाए वो देखने जाओगे, isn't it? धूम 5 में इंटरेस्ट है मैम, कितनी अच्छी गूगल कर रही है। सर्च 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 एटलीस्ट कर तो रही है। विच मूवी? बिग बुल, उसको पता है। हर्षद मेहता का स्कैम, वो कुछ और मूवी बोल रही, तुम कुछ और मूवी बोल रही। ओके, सो हर्षद मेहता का स्कैम मूवी अगर नहीं देखी है तो देखो। वेब सीरीज नहीं देखना है, मूवी देखना है उसकी। तो अभी नहीं देखने के लिए बोल रही हूँ, घर पे जाके देखने बोल रही हूँ। क्वाइट। So all of you are going to watch that movie, हर्षद मेहता का स्कैम, और फिर समझना है उसमें क्या है। How cleverly he has raised the stock market. वो पकड़ा गया स्कैम में, उसको पूरा बैंकरप्ट हो गया, वो अलग स्टोरी है। लेकिन द स्मार्टनेस कि एक 10 रुपीज का मार्केट शेयर वैल्यू का शेयर ही हैज टेकन अप टू 1000 रुपीज। 10 किधर है और 1000 किधर है? That is what is the stock market. That is what is your Indian financial market. Not only Indian, but financial market. As I said you so many times, again I will repeat, market is a place where you can earn 40 rupees to 4 lakh rupees in a day. सिर्फ हमें निकालने आना चाहिए। डोंट से कि मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में बहुत पैसा है। अभी भी लॉकडाउन में भी 2020 में भी था, 2021 में भी है, 2022 में भी रहेगा, और आप जब अर्निंग करोगे 2025-30 में तब भी है। The only thing is that you should know how to grab it. कि वो मैं 40 रुपीज कमाऊं या मैं 4 लाख रुपीज कमाऊं, 40 कहां से आएगा और 4 लाख कहां से आएगा, that you should know. ठीक है, so this is what is your financial market. Again as I said you, जब हम लोग मॉड्यूल करेंगे एक एक फिर हम लोग इन डेप्थ जाएंगे। नेक्स्ट, रीसेंट ट्रेंड इन फाइनेंस। फाइनेंस क्या है, चेंज हो गया। पहले लोग इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ बैंक्स में जाते थे, बैंक, एफडी, गोल्ड, बट अभी वो एफडी और गोल्ड का टाइम चला गया। अभी आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है कि अभी आप छोटे हो, छोटे मतलब अभी छोटे ही हो, आज से 10 साल के बाद जब आपकी लाइफ स्टार्ट होगी तो मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं आज कि मुझे 10 इयर्स के बाद मुझे उतना रिटर्न मिले।
ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड सुना? यस, हमने सब एडवर्टाइजमेंट में सुना म्यूचुअल फंड। नाउअडेज सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन दे रहा है हमें? म्यूचुअल फंड। क्योंकि शेयर मार्केट में हम लोग जल्दी नहीं जा सकते, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। सेकेंड थिंग, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट किसमें है? म्यूचुअल फंड। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू इन्वेस्ट? यस, आंसर इज यस, यू कैन इन्वेस्ट। 500 रुपए है, 1000 रुपीज है, यू कैन इन्वेस्ट। सिंपली 1000 रुपीज डाल देना है, 4-5 साल के लिए। मिलेगा कितना? लक अच्छा है तो 20 भी रिटर्न मिलेगा, नहीं है तो कम से कम 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब एक पॉकेट मनी आपने आपकी डाल दी। इन्वेस्टमेंट का एक ही रूल है, लॉन्गर द पीरियड लॉन्गर द रिटर्न। इसको हमेशा याद रखना कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, लॉन्गर द टर्म लॉन्गर द रिटर्न। शॉर्ट टर्म के लिए डालोगे रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए कब डालना है? जब आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है तो आपको क्या करना है? लॉन्ग रन के लिए डाल देना पैसे, तो रिटर्न आपको उसके ऊपर अच्छा मिलेगा। ठीक है। सो रीसेंट ट्रेंड्स में क्या क्या है? म्यूचुअल फंड्स है, डेरिवेटिव मार्केट्स है। अभी जो कॉन्सेप्ट निकला माइक्रो फाइनेंस का, माइक्रो फाइनेंस सुना है? चिट फंड की तरह ही होता है, छोटे छोटे फाइनेंस होते हैं। जैसे अभी आपने वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप में सुना होगा, या वुमेन एम्पावरमेंट में 5 लेडीज का ग्रुप होता है, उसको फाइनेंस देते हैं लेडीज को, ग्रुप फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं। तो ये सब क्या है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में निकलने लगा। तो माइक्रो फाइनेंस कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। अगर आपके पापा के पास 1 लाख रुपए सपोज है, स्पेयर में कबोर्ड में लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, तो कबोर्ड में पैसा लॉक करने से पैसा उतने का उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ये याद रखना है। तो क्या कर सकते हो? उसको आप लोग फाइनेंस में दे सकते हो। एक 4 लेडीज या 5 लेडीज को भी दे दोगे 20,000। अब बोलोगे कौन है लेने वाला? बहुत है लेने वाले। 20,000 भी दोगे, बैंक रेट है 3%, आप दे रहे हो उसे 5%, आराम से जाएगा पैसा और इंटरेस्ट भी आपका वापस आएगा। ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? दीज ऑल आर रीसेंट ट्रेंड। ये माइक्रो फाइनेंस वाले, बजाज फाइनेंस, ये सब ऐसे स्लो स्लो इन्वेस्टमेंट से क्या हो गया? नाउ दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विद अ वेरी बिग कंपनी। हाँ, अगर मुस्लिम्स बोलते हैं इंटरेस्ट का पैसा नहीं खाना चाहिए, वो हराम का होता है, वो आपका प्रॉब्लम, लेकिन पैसा किसी का भी हराम का नहीं होता। When you are giving in, अगर वो 1 लाख का इंटरेस्ट आप ले रहे हो, लेकिन वो 1 लाख रुपए तो आपने कमाया है ना, क्योंकि ये सब स्टोरी चलती है बहुत ज्यादा। तो दिस इज कंप्लीट योर कॉमर्स। ये है आपका म्यूचुअल फंड्स।